السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل اور سپورٹس نیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے آئی سی سی انڈر 19 ویمنز ورلڈ کپ کے حوالے سے اور دیگر کھیلوں کی خبریں بھی شامل کریں گے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کیسا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے ملک کے بالائی علاقوں میں جاری برف باری کی صورتحال کی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے روس کے وزیر توانائی کی ملاقات۔ پاکستان کو طویل المدتی بنیادوں پر تیل اور گیس کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ روس کے صدر کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم پارٹنر قرار دیا۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے بھرپور دلچسپی کا اعادہ۔ پاکستان اور روس کا توانائی، تیل و گیس کی تلاش اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ اسلام آباد میں بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مزید مستحکم بنانے پر زور۔ مختلف شعبوں میں ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ تیل اور گیس سمیت دیگر شعبوں میں جامع حکمت عملی کے تحت تعاون بڑھائیں گے۔ عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے سے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ روسی وزیر توانائی نکولے شگینووف کی پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو۔ پنجاب میں عبوری وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم۔ اپوزیشن اور حکومت کے نمائندے شامل۔ پہلا اجلاس کل ہوگا۔ اتفاق نہ ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا رابطہ۔ بلوچستان کو درپیش مالی مسائل پر گفتگو۔ مشکلات کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت فراخ دلانہ اقدامات کرے۔ چیئرمین سینٹ وزیر خزانہ کی درکار فنڈز فوری جاری کرنے کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی کے جن ارکان نے مطمئن کیا ان کے استعفے منظور کیے۔ دیگر ارکان نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ استعفے منظور کروں تو شور، نہ کروں تو بھی شور مچتا ہے۔ چاہتا ہوں جن ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ اسمبلی میں آئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف۔ عمران خان کی سیاست کا مقصد ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ اتحادی حکومت کی تمام تر توجہ ملک کی بہتری پر مرکوز ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں الیکشن کے لیے تیار ہے، بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی لندن میں گفتگو۔ ڈیووس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری کی بیلجیم منصب سے ملاقات۔ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ سرمایہ کاری میں اضافے اور تجارتی اور ثقافتی تعاون پر بھی بات چیت۔ وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کی امداد پر بیلجیم کا شکریہ ادا کیا۔ معاشی استحکام کے لیے بیرونی سرمایہ کاری، ترسیلات زر اور برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ تیز تر ترقی کے لیے سالانہ 25 سے 30 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے آزاد کشمیر کی سینئر قیادت کی ملاقات۔ 5 نکاتی قرارداد منظور۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی کے اقدامات واپس لیے جائیں۔ 5 اگست کے غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدامات کے خاتمے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات۔ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی باعث تشویش۔ بھارت کشمیریوں کو اپنا حق مانگنے پر قتل کر رہا ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ حریت قیادت۔
भारत खवातीन के लिए गैर महफूज। खवातीन कमीशन की सरबराह के साथ जिनसी हरासानी का वाकया। विमेन कमीशन की सरबराह महफूज नहीं तो दीगर खवातीन की हालत क्या होगी। खवातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ दिल्ली में खवातीन रेसलर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार मोहम्मद अनवर खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2:30 बजे रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सरदार मोहम्मद अनवर खान की वफात पर कल आम तातील का ऐलान। सिहोनी फोर्सेस की जनीन बनागुज़ीन कैंप पर शदीद फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। रवा माह के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17 हो गई। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। 21 से 24 जनवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसेहरा और एबटाबाद में बर्फबारी की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। यहाँ आपको बताएं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में रूस का अहम पार्टनर करार देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में रूस की भरपूर दिलचस्पी का अयादा किया है। रूसी सदर का ये खुसूसी पैगाम रूस के वज़ीर तवानाई निकोले शोल्गिनोफ ने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात के दौरान पहुँचाया। मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की तरक्की के लिए तवानाई के शोबे की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में रूस से पाकिस्तान को तवील मुद्दत बुनियादों पर तेल और गैस की फ्राहमी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक उमूर का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रूसी वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने सितंबर 2022 में समरकंद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस मौके पर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले किए गए थे। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी मामलात में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक की कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने 20 जनवरी 2023 को इस्लामाबाद में होने वाले पाक रूस पैनल हुकूमती कमीशन के इजलास के 8वें दौर के काम के हवाले से ख्यालात का इज़हार किया। पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तेल और गैस की तलाश, साइंस और टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास और बिजनेस फोरम की तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के तजारत, इक़्तिसादी अमूर, साइंस और तकनीकी शोबों में ताउन के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने तवानाई, तेलो गैस की तलाश, ज़राअत, मालियात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मुवासलात, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया और कई शोबों में वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। रूस पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिस पर हम जॉइंटली काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात हमारे डेवलप होना चाहिए मज़ीद। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं समझता हूँ कि अगर हमने इसको अवेल कर लिया तो रशिया की ट्रेड एक्टिविटीज़ हमारे साथ जो बहुत कम है, कुछ मिलियन डॉलर्स की हैं, वो बढ़ के हम इनको कई बिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। We think that there is a big potential for cooperation in terms of researches for oil and gas and critical minerals. And I have very positive ideas and expectations from the results of these meetings and discussions. पाकिस्तान रूस बिजनेस फोरम का इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और रूस के कारोबारी अफराद ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। We are ready to offer to cooperate with Pakistani companies. We think is very important
is that we would like Pakistani companies to become part of our technological framework. एनर्जी सेक्टर के रेफरेंस से हमारी डिस्कशन हुई है डिफरेंट R&D प्रोजेक्ट्स पे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे। जो रिसर्च प्रोजेक्ट हम रशियंस के साथ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जिसका हमने प्रपोजल दिया है, उससे पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन्हांस होगा। हायर एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो कोऑपरेशन होना है दोनों मुल्कों का, उस पे बड़ी डिटेल डेलीब्रेशंस हुई हैं। उनकी तरफ से ये हमें आगाह किया गया कि उन्होंने हायर एजुकेशन पे अब स्टूडेंट्स के लिए 50 के लगभग स्कॉलरशिप्स रख लिए हैं, जो पहले ज़रा कम थी तादाद। रूसी वफ्द के अरकान ने कहा कि रूस और पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत सी मसनूआत दरामद और बरामद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने कहा कि रूस एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तान दाखिल होने जा रहा है। पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन के कामयाब मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फ़रोग़ पाएगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। रूस के वज़ीर तवानाई निकोले शिल्गिनोफ ने कहा है कि जामे हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के साथ तेल और गैस समेत दीगर शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान और रूस ने मुश्किल हालात में ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अवाम की सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देने से एतमाद में इजाफ़ा होगा। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि तापी गैस मंसूबे का हिस्सा नहीं, ताहम शमूलियत पर गौर किया जा सकता है। This meeting was very important, the meeting between our heads of state. They have discussed gas projects, the current pending project, the Pakistan Stream, as well as finding gas sources. They have discussed gas transit through the countries of Central Asia, from Russia through Kazakhstan, through Uzbekistan and Afghanistan to Pakistan, or an alternative route through Iran. We continue to discuss this issue, and we hope that at the 8th meeting of Intergovernmental Commission, we will be able to resolve most of them. The two heads of state also discussed other bilateral issues apart from energy, for example, diversifying trade, and as I have already said, these negotiations were indeed important. स्पीकर पंजाब असम्बली ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान शामिल हैं। कमेटी में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल और हाशिम जमा बख्त शामिल हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और सैयद हसन मुर्तज़ा के नाम शामिल हैं। कमेटी 3 दिन में परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज की जानिब से भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब करेगी। ताहम पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक न होने पर निगरान वज़ीर आला की तैनाती का मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में होगा। कमेटी के रुकन मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पहले जो नाम भिजवाए थे वही रहेंगे, मज़ीद नए नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से राबता करके बलूचिस्तान हुकूमत को दरपेश माली मसाइल की तरफ तवज्जो दिलवाई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत को माली मसाइल दरपेश हैं जिन्हें फौरी हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए वफाकी हुकूमत को फ़राख दिलाना इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन सेनेट की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और यकीन दहानी कराई कि सूबे को दरकार फ़ंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार से ऑयल एंड गैस के शोबे की बड़ी कंपनी बीबी एनर्जी ग्रुप के सरबराह मोहम्मद बिस्ताने की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो दे रही है। हुकूमत कंपनी को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ग्रुप के सरबराह ने तवानाई के शोबे में मौजूदा सरमायाकारी के बारे में आगाह किया और पाकिस्तान को सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की फराहमी के लिए स्ट्रेटेजिक कारोबारी ताल्लुकात इस्तवार करने में दिलचस्पी जाहिर की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि जब इस्तीफे मंजूर करता हूं तब भी शोर मच जाता है, जब नहीं करता तब भी शोर मच जाता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि PTI वफ़द से मुलाकात में इस्तीफों पर मुतमईन होकर ही अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं।
और जो लोग आए थे या जिन लोगों ने मीडिया पे जाके या जिन लोगों ने किसी और अंदाज से मुझे इस बात पे जो है वो सेटिस्फेक्शन मेरी करा दी कि वो जेन्युइनली उन्होंने खुद ही वॉलंटरी जो है वो रिजिग्नेशन लिखे हैं और दिए हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है, तो मैंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मुझसे बहुत सारे उनके बाकी मेंबरान जो हैं उन्होंने फ़ोन्स पे बात की कि जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमें तो ये कहा गया था कि हम प्रेशर देने के लिए आपसे लिखवा रहे हैं, तो हम तो संजीदा नहीं थे उस वक्त लिखने में। तो ये बातें हैं जिससे फिर जब स्पीकर को डाउट हो जाता है तो जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अभी भी चाहूँगा कि वो लोग आएँ जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, आएँ बैठे हैं असेंबली में, क्यों नहीं आते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की सियासत का मकसद मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसका कोई और एजेंडा नहीं है मासवाए इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो ताकि मौशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा न खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट। अगर ये इक़्तिदार में है तो मुल्क रहना चाहिए, अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो 3 टुकड़ों में तकसीम होना चाहिए। वो लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये 60 दिन में हो रहे, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन एक्सेलवेंट ट्रॉटसेनबर्ग से डेवोस में मुलाकात की। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक के रवाबित पर तबादला ख्याल किया और बैंक की तरफ से $2 अरब की फराहमी के वादे को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े तरक्याती पार्टनर के तौर पर आलमी बैंक का अहम किरदार है। उन्होंने आलमी इक़्तिसादी फोरम में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा हाजा लहबीब ने डेवोस में मुलाकात की। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए बेल्जियम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाक बेल्जियम तिजारती और सकाफती ताउन समेत दूसरे अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत जनीवा कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी इमदाद $10.9 अरब तक पहुँच गई और पाकिस्तान की तामीर नौ की हिकमत अमली को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि आलमी इमदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए वजारत मनसूबाबंदी में खुसूसी प्रोजेक्ट सेल कायम किया जाएगा जो बेहतरीन प्रोफेशनल्स और माहिरीन पर मुश्तमिल होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आलमी इमदाद के मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर ज़्यादा देर नहीं चल सकते। हमें हर सूरत मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना होगा। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि हमें मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाकर मुल्की मईशत को मजबूत करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि तेज तर तरक्की के लिए 25 से 30 अरब डॉलर की सालाना बैरूनी सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कैसे करें, और उस टर्न अराउंड एजेंडा में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। हम उधार के ऊपर, हम कर्ज़ों के रोल ओवर के ऊपर, हम अपने दोस्त ममालिक की इमदाद के ऊपर इस मुल्क को मुस्तकिल नहीं चला सकते। 1-2 साल के लिए हम मोहलत हासिल कर सकते हैं, लिहाजा हमें हर कीमत पे मुल्क की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग देना है, मजबूत करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट के लिए फंड्स नहीं थे। गुज़श्ता हुकूमत के मुआहदों के बायस हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की मईशत की सूरत हाल नहायत नागुफ्ता बे थी। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को डूबने से कैसे बचाएं, और इसके लिए IMF का जो मुआहदा हमारे सिर पर लटक रहा है, जिसको पुअरली नेगोशिएट किया गया, लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है चूँकि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री,
अगर प्रीवियस हुकूमत ने उसको गैर जिम्मेदारी के साथ एग्री किया तो हमें उसको ओन करना पड़ेगा, चूँकि वो पाकिस्तान का सॉवरेन डॉक्यूमेंट है। इस मौके पर वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुस्तकबिल में मुआशी बेहतरी के लिए 5 नुकाती पॉलिसी मुतारफ कराते हुए पाइड से 3 हफ्तों में सिफारिशात तलब कर ली। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तेज तर तरक्की के लिए IT के मैदान में तरक्की करने वाले मुल्कों की सफ में खड़ा होना जरूरी है। सदर ममलिकत का कहना था कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में दस्तरस ही कामयाबी की जमानत है। वो इस्लामाबाद में ग्लोबल डिजिटल समिट एक्सपो से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन वक्त की जरूरत है। दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करके बहुत आगे बढ़ गई है। कारोबार समेत तमाम अहम मामलात इसी जरिए से तरक्की कर रहे हैं। जरूरी है कि इस शोबे में जिद्दत लाकर आगे बढ़ा जाए। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर जल्दी सवार हो जाया जाए तो बड़ी तेजी से तरक्की के रास्तों पर चल सकते हैं। ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री के अंदर तरक्की नहीं होती जितनी तेजी से IT के अंदर होती है। आप यहाँ बैठकर दुनिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। यहाँ बैठकर दुनिया के सारे दरवाजे IT में ही खुल सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी IT सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मीन्स कि आई थिंक एंड आई सी, दैट इज वेयर आई वांट पाकिस्तान टू बी। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें भी मिन हैसुल कौम अब माजी के तरीकों और पेपर वर्क से निकलकर डिजिटलाइजेशन की जानिब आना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मईशत में इस्तेहकाम नागुज़ीर है और माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा बहुत जरूरी है और इस हवाले से बरामदात में इजाफे के लिए सनतों को फरोग देकर दुनिया से मुकाबला मुमकिन हो पाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि मुल्क में सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी इक़दामात उठाने होंगे। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने समिट में शरीक पार्टिसिपेंट्स में अवार्ड्स तकसीम किए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान और सीनियर कश्मीरी सियासी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर 5 निकाती करारदाद मंजूर की है, जिसमें भारत से कहा गया है कि वो 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना इक़दामात वापस ले। ये करारदाद आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर अनवार अल हक, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और सीनियर कश्मीरी क़यादत की ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में मंजूर की गई। मुतफ़िक़ा करारदाद में भारत से मुज़ाकरात से पहले 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस लेने के पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई है। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। उस सिलसिले में आज जो है वो बुनियादी मामलात के ऊपर मोहतरम कायद से जो है वो गाइडेंस ली है। मजीद 1-2 मीटिंग और फिर कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। किस तारीख को वापस जा रही है मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक कोई 26-27 तक प्रोग्राम बना है। मियां साहब की वापसी के हवाले से भी बातचीत हुई है? मियां साहब की वापसी के हवाले से ये तो तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना है और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मदद करेंगे। बाकी उनके जाने से मुतल्लिक जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसमें फर्दर भी जो है डिस्कशन होगी और उसके मुताबिक जो है इसको तो ऑफ करें। ऑडियो तो बंद करो। थैंक यू। इसको ऑफ करें। देखिए पंजाब में नाकामी आप नहीं कह सकते। मामला ये है कि एक आदमी कह रहा था कि मैं असेंबली 26 नवंबर को उसने ऐलान किया कि मैं ऑडियो खराब। उसने कहा जी मैं 17 दिसंबर को तोड़ूंगा। उसके बाद उसने कहा जी अब मैं 23 को तोड़ूंगा। तो ये गवर्नर का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और जिम्मेदारी थी कि वो उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते थे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनके पास 191 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नहीं आए। जो कुछ 6-7 लोग थे उनको उन्होंने जो है वो उनकी नाराजगी दूर की है। तो ये उनकी कामयाबी या उनकी नाकामी इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है। ये उनकी पार्टी पार्टी थी, उनके अपने लोग नाराज थे, उनमें से कुछ 6-7 उनके साथ जो है वो राजी हो गए, बाकी नहीं हुए।
लेकिन आपने भी कहा कि हम नहीं होने देंगे। सारठ साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने इवन ये कहा कि मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। क्या इतने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह क्या थी? और दूसरी, जो आपकी मेन लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान, हमजा शहबाज साहब भी मौजूदा अमेरिका में, जाहिर बात है लोग फेस भी देखते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, तो क्या इसका असर पड़ता है जब इंडिविजुअली कैंडिडेट्स आपसे? देखिए, मामला ये है कि जहाँ तक फेस देखने वाली बात है, हमारा फेस या हमारी क़यादत का फेस तो हमारे लोगों ने देखना है। हमारा वहाँ पे 179 का फिगर है, और 179 का नंबर जो है वो सोमवार को भी पूरा था, मंगल को भी पूरा था, और बुध को हमारे वो लोग जो हॉस्पिटल एडमिट थे वो भी वहाँ पे। बिलाल वड़ाइट साहब जो पहले उन्होंने आपको वोट दिया था, वो दूसरी तरफ चले गए। बिलाल वड़ाइट साहब जो है वो क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, उनका अपने भाई खालिद वड़ाइट जो MNA है हमारे, उनके साथ झगड़ा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो, क्योंकि वो दोनों अब इकट्ठे नहीं चल सकते। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनके लोग जो उनसे नाराज थे, उनके लोग उनसे नाराज थे, इस वजह से नाराज थे कि आप असेंबली ना तोड़े। वो 12-13 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नाराज रहे हैं, और उनमें से बाकी लोग जो है वो उन्होंने उनको पुराने पाक दे के राजी किया। लेकिन इससे क्या ये जाहिर नहीं हुआ कि वो जो बेहुदा इल्जाम तराशी करते थे कि जो उनको खरीदा गया है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे, या वो कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी जरूरी है आपके इलेक्शन जीतने के लिए? क्या आप समझते हैं कि उनके बगैर आपकी पार्टी पंजाब असेंबली नहीं जीत? साहब गैर वो तैयार हैं, वो उनका भी दिल नहीं है कि जितनी जान साहब गैर जमहूरी कुव्वतों का बताएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी भी इलेक्शन हुए हैं तो उनका किरदार हमेशा वाज़ह है। क्या आपका क्या ख्याल है पंजाब और KP में? या जो ये कमिटमेंट जो है वो अदारे की तरफ यार ये जनरल साउंड है, मेहरबानी करके प्लीज यार मेहरबानी बंद करो इसको यार, हद हो गई है यार, सब वो कर रहे हैं, अजीब हो यार, सारी आवाजें जा रही हैं, क्या हो गया नसीब? तो ये उसके ऊपर यकीन किया जाना चाहिए, और वो उनको जो है वो आइन के मुताबिक अपना किरदार। मरियम नवाज ने फैसला किया है कि 10 अफराद की गिरफ्तारी की खबरें आ रही है, जिनमें इमरान खान और शेर रशीद भी शामिल है। क्या वाकई हुकूमत ने फैसला कर लिया कि PTI की जो क़यादत है उसको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, ये हुकूमत का फैसला नहीं होगा, ये फैसला जो अदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो इनके काले करतूत सामने आ रहे हैं। अब इमरान खान का जो तोशा खाना में इंतहाई जो है वो घटिया किरदार सामने आया है, जो इसने वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से कौमी खजाने को 50 अरब का टीका लगवा के 5 अरब रुपया कमाया है, तो ये केसेस जब इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, रैप हो रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो अगर ये लोगों की गिरफ्तारी बनती है तो अदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से खबरें हैं कि इख्तलाफात हैं उनके, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वो कोई इख्तलाफात नहीं है, बिल्कुल वो शाहिद खान अब्बासी साहब पूरी तरह से कमिटेड है, और पार्टी पॉलिटिकल हो गई हैं तो शाहिद असलम को FIA ने क्यों गिरफ्तार किया? और आपकी जब हुकूमत अपोजिशन में थी तो आप यही कहते थे कि PTI के अंदर सहाफियों के साथ ये होता है, सिर्फ बाजवा साहब के एसेट लीक करने पर शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया, तो आप कह रहे हैं गैर जमहूरी कुव्वत? शाहिद असलम साहब जो एक यानी प्रोटेक्टेड डेटा जो है वो लीक हुआ, वो FIR के जो लोग पकड़े गए, उन लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने ये क्यों भाई उनके उस इंकशाफ की बुनियाद के ऊपर शाहिद असलम साहब को सामने किया गया, लेकिन उस तफ्तीश में उनके कानूनी हकूक का ख्याल रखा गया, रखा गया, सही आवाजें आ रही है, उनकी गिरफ्तारी आपकी थी? देखिए, मेरे इल्म में थी, लेकिन मामला ये कि मैंने इस बात को श्योर किया उनके साथ राणा साहब, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पंजाब हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है जो तहरीक इंसाफ को, और जो पहले किरदार साकिब निसार साहब अदा करते रहे हैं, कुछ जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है, और एक जो सूबाई वजीर थे पंजाब के
उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल में सहूलतकार अभी भी हैं इमरान खान के जो, और एक इदारा अभी भी न्यूट्रल नहीं हुआ? आपकी बात जो है वो दुरुस्त है, लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ जजेस साहब के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें चाहिए, मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी कि इस किस्म की होने वाले जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर जो है वो तवज्जो दें और उनको दूर किया जाए। नवाज साहिबा सूबाई असेंबली के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगी? जी, न सिर्फ हिस्सा लेंगी बल्कि नहीं, यदि इलेक्शन लड़ेंगी पंजाब असेंबली का? देखिए ये फैसला तो खैर आगे जाके होगा। सर अभी किया नहीं फैसला, सर अभी तो शुरू हो गया कैंपेन को जो है वो लीड करेंगी। नहीं, अभी तो कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। 3 महीने में इलेक्शन होने ना सर, असेंबली तो टूट गई। हो सकता है 3 माह में ना हो। अच्छा, अभी भी इलेक्शन नहीं होने, अभी भी आप समझते हैं कि इलेक्शन मशकूक है, 3 माह में ना हो? आइन में ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन में कुछ चीजें और भी दर्ज है। राना साहब, मुल्क में जो सियासी इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह क्या मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन सकती है? पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हो सकती है? क्यों नहीं बन सकती? राना साहब, क्या ये हुकूमत क्या ये सोच रही है बारे में कोई पार्टी ने फैसला नहीं किया? जब पार्लियामेंट पार्टी वजूद में आएगी वो इस बारे में फैसला। राना साहब, क्या हुकूमत ये सोच रही है कि इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए इलेक्शन को आगे, जिस तरह आपने कहा जी आइन में ये है कि 90 रोज, आइन में ये भी है कि 6 माह के लिए PML है, कोई ऐसी सोच नहीं रखती और हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो आईनी और कानूनी मामलात है वो जिस तरह से हैं उस तरह से हल होंगे और वो हल करना। राना साहब, मुल्क में जो क्या PMLN ने मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमें सुनने में आया कि कुछ रहनुमाओं के ख्याल में जो पार्टी का आइंदा इलेक्शन में कामयाबी का सेहरा उसे मियां नवाज शरीफ को वहां होना लाजिम व मलजूम है, क्या उनसे कहा गया कि जितनी जल्दी हो? ये बात दुरुस्त है कि हमारी कलेक्टिव राय ये है कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे इलेक्शन के मौके पर पार्टी को लीड करना चाहिए। चलो जी, अभी तक उनके केसेस के बारे में कोई पेशरफ नहीं हुई। उनके जो मरियम नवाज साहिबा की जो एक्विटल हुई है, 6 में से 5 पॉइंट मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड है और उनको वो एक्विट करते हैं, लेकिन अभी तक वफाकी वज़ारत कानून ने अभी तक डिस्कस हुई है और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर जो है वो कोई बेहतर फैसला और बेहतर तरीकाकार दिसंबर में सुनने में ये आ रहा है कि शायद इंट्रा इलेक्शन भी आपकी पार्टी के अंदर हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है? ये मरकजी काउंसिल का इजलास आपके में है कि गुड है और मरकजी काउंसिल का जब इजलास होगा तो उसमें पार्टी इलेक्शन जरूर। मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे आपकी पार्टी की तरफ से? राना साहब, आज के इलेक्शन लड़ेंगे, आज का जो मुशावरती अमल था उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की किसी तरह शरीक हुए, वो टेलीफोनिक रब्ता या उन्हें आगाह किया गया था जो आज बातें तय हुई हैं या किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का वो आपसे कंसर्न है। इलेक्शन लड़ेंगे जो ये केस इमरान खान वफाकी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारे नंबर्स पूरे थे और पूरे हैं। पंजाब के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि वोट और सपोर्ट नवाज शरीफ की है, उनकी वापसी ज़रूरी है। नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि जल्द वतन वापस आ जाएं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरी मौका। CDA लाया अपने डेवलप्ड सेक्टर्स में मुख्तलिफ साइजेस और कैटेगरीज के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, होटल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स, एग्रो फार्म्स और स्कूल के प्लॉट्स का शानदार नीलाम आम 24 से 26 जनवरी 2023 जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे CDA की साख और कानूनी तहफ्फुज़ के साथ
मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cda.gov.pk। तामीर और तरक्की, विफाकी हुकूमत की तरजीह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है कि भारत कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादियत मांगने पर कत्ल कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार, सैयद बशीर इंदिराबी, ख्वाजा फिरदौस और अब्दुस्समद इनकलाबी ने श्रीनगर में अपने बयानात में गाँव कदल, हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा कत्लेआम के शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। भारतीय फौजियों ने इन इलाकों में 1990 की दिहाई में जनवरी के महीने में कत्लेआम के बेहिमाना वाक़यात में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को शहीद किया था। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों की वजह से तनाज़ा कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ है, जिन्हें हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए गाँव कदल, हिंदुवाड़ा, कुपवाड़ा और कत्ल के दीगर दिलदोज़ वाक़यात के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में शहदा के मिशन को हर कीमत पर इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के आज़म का इयादा किया गया। फिस्ताई मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जारी बेदखली मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया है। काबिज़ हुकाम नाम निहाद तजावुज़ात के खात्मे के नाम पर कश्मीरियों की अराज़ी छीन रहे हैं। मुकामी लोगों से अब तक हज़ारों कनाल अराज़ी छीनी जा चुकी है। लोगों ने जम्मू और दीगर इलाकों में काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से बेदखली मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने काबिज़ इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ज़मीनों से कश्मीरियों की बेदखली के हुक्म को मनसूख करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में 2019 के बाद बहुत से कवानीन लाए गए हैं जो लोगों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि बेदखली मुहिम का मकसद लोगों को हरासा करना और अहम मसाइल से तवज्जो हटाना है, क्योंकि हुक्काम ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रहे हैं। और नाज़रीन, भारत ख़वातीन के लिए गैर महफूज हो गया है। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सरबराह के साथ जिनसी हरासानी का वाक़या हुआ है, तो दूसरी जानिब जिनसी हरासानी के खिलाफ भारतीय ख़वातीन रेसलर्स का धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाद। दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में ख़वातीन इस कदर गैर महफूज हो चुकी हैं कि दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सरबराह स्वाति मालीवाल को दिल्ली में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने जिनसी तौर पर हरासा किया और 15 मीटर तक सड़क पर घसीटा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि अगर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की सरबराह भी महफूज नहीं तो भारत में दीगर ख़वातीन की हालत ज़ार का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। दूसरी जानब भारत में ख़वातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ दारुल-हुकूमत दिल्ली में इंडिया की सफ़े अव्वल की रेसलर्स का धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा। भारतीय ख़वातीन रेसलर्स दुहाई दे रही हैं कि मोदी हुकूमत में वो बिल्कुल गैर महफूज हैं और इस वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। दर्जनों ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिज भूषण शरण सिंह ने 15 से ज़ायद ख़वातीन को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगट ने कहा कि फेडरेशन के सरबराह और कोचेस ख़वातीन को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय ख़वातीन रेसलर्स का कहना है कि इस इस्तेहसाल की वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और लाचार होकर कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं। धरने में शामिल ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाले बजरंग पूनिया ने कहा कि भारतीय पहलवान तब तक किसी आलमी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ब्रिज भूषण शरण सिंह को ओहदे से हटाया नहीं जाता और मुजरिमों को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मेजर जनरल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अनवर खान रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। सरदार मोहम्मद अनवर 9 मई 1945 को आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में पैदा हुए। वो पाक फ़ौज में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रहे। उन्होंने पाक फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद 2001 से 2006 तक आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। मरहूम की नमाज जनाजा कल रावलपिंडी में अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सरदार मोहम्मद अनवर खान की वफ़ात पर कल रियासत भर में आम तातील का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने में ताउन के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान की IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के नतीजे में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इदारों की सतह पर बातचीत होती रहती है।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقتصادی تعاون تنظیم کے وزارتی کونسل کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے لیے 25 جنوری کو ازبکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ اس تقریب کا تھیم رابطے کو مضبوط بنانے کا سال ہے، جو پاکستان کے لیے خصوصی دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پنجگور میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور ایران سے پاکستان میں ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ قرآن مجید میں امانت اور خیانت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خائن کے لیے قرآن میں سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق احتساب اسلام اور آئین کا بنیادی جزو ہے۔ بینچ کے دوسرے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالت قوانین کا جائزہ آئین اور بنیادی حقوق کے تناظر میں ہی لے سکتی ہے، کچھ اور نہ ملنے پر کیا عدالت قوانین کا شرعی بنیادوں پر بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ قوانین کا شریعت کے تحت جائزہ صرف شرعی عدالت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے قانون سازی کا اختیار ہے۔ ترامیم کا ردم کرنے کی صورت میں عدالت کو بتانا ہوگا کہ نیب ترامیم جیسی قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی۔ وہ آئندہ سماعت پر بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے کوئٹہ کا، جہاں شدید سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ برف باری، بارش اور نقطہ انجماد سے کم درجہ حرارت سے لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ انسداد پولیو مہم اور بند ہو جانے والی چاراہیں بحال رکھنے کا مشن بھی کامیابی سے جاری ہے۔ کوئٹہ سے وقار احمد رپورٹ کریں گے۔ لکپاس کوئٹہ پر کراچی اور ایران بارڈر، جبکہ خوجک ٹاپ پر مسلسل برف باری سے کوئٹہ کندھار شاہراہ پر ٹریفک روانی متاثر ہوئی۔ ہیوی مشینریز کے ساتھ پی ڈی ایم اے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لیویز نے مسلسل برف باری میں بھی سڑکیں بحال رکھنے کے مشن کو جاری رکھا۔ 18 جنوری سے کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چمن، مزدون، توبہ چکزئی اور شمالی بلوچستان کے کئی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ صبح سویرے شروع ہوا اور رات گئے تک جاری رہا۔ زیارت، کان میترزئی، مسلم باغ، خانوزئی اور کلات میں 2 فیٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے بعد سردی میں قدرے کمی بھی آئی، لیکن سائبیریا یا کندہار سے آنے والی برفیلی ہواؤں سے دوبارہ بھی شدید سردی کا قوی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بلوچستان کے سرد ترین مقامات میں زیارت -5، کلات -3، کوئٹہ اور یوب میں ٹیمپریچر -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی طور پر دسمبر کی 20 تاریخ سے 30 جنوری کا درمیانی پیریڈ بلوچستان، افغانستان اور سیستان بلوچستان ایران میں چلہ سیاہ سے جانا جاتا ہے۔ چلہ سیاہ یہ وہ سیزن ہے جس میں سفر سے گریز کا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پیریڈ میں ہی برف باری اور بارش کے ساتھ پارا نقطہ انجماد کو کراس کر جاتا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ویدر چیلنج سخت ہے، لیکن قوم کے مستقبل کے لیے صوبے بھر میں انسداد پولیو مشن رکا نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں گھٹنے گھٹنے برف بھی گمنام ہیروز کو بچوں کو پولیو ویکسین دینے کے قومی مشن اور اخلاقی فریضے کی ادائیگی سے نہ روک سکی۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ ملتان، ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن، ڈیرہ غازی خان، لیا، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، سکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اگر بات کی جائے کشمیر، مری، گلیات، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسیرہ اور ایبٹ آباد کی، تو وہاں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کشمیر، مری، گلیات، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسیرہ اور ایبٹ آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ چند مقامات پر درمیانی سے شدید برف باری بھی متوقع ہے۔ برف باری کے سلسلے کی وجہ سے ان علاقوں کی طرف سفر کرنے والے لوگوں کو راستوں کی بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ استور میں -12، کالام -10، گوپس -9، بگروٹ -7 اور مالم جبہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کے بارے میں آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 2, لاہور 5, کراچی 9, پشاور 1 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ شکریہ قاسم۔ ناظرین، موسم کے احوال کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔